Hello everyone, so welcome back to the another video on my channel. Students, today video is going to be on the topic thermodynamics. On huge request, I'm going to make a video that is one short video on this chapter. So this is chapter number 5 in class 11, okay? And it is always considered as a difficult chapter, but it is not difficult at all, and provided if you study it step by step, okay? Let us not waste time. To begin with, firstly the meaning of the term thermodynamics should be clear to you. The word thermo always means heat and dynamics stand for change. So in thermodynamics, you study heat change, or we may say we study energy changes. So we already know that heat changes its form or energy changes its form from one form to another. Its form from one form to another. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है energy. Like your potential energy gets converted into kinetic energy. Sometimes your kinetic energy gets converted into mechanical energy. And mechanical energy, of course, can be converted into electrical energy. And there are more types of energies also. All right. So thermodynamics is all about studying the energy convergence, heat convergence, or heat change from one form to another. So there are important terms in thermodynamics which are used quite often. So important terms. Let us discuss those are the which are the important terms. So first is what is system? What is your system in surrounding? So system is nothing but a part chosen for the observation. So whatever you are taking, suppose you are going to a lab and you are performing any experiment, taking a test tube, आपने test tube में पानी डाला, उसमें आपने reaction की, suppose you have added barium sulfate solution into sodium chloride solution, आपने दो solutions को mix किया and you are going to check what is what are the products, what will happen. So at this time your test tube will be your system. So you are observing anything in a test tube. So test tube becomes your system, and rest of the part, that is the rest of the part of the lab, rest of the part of the school, anything except this will be termed as surrounding. Okay, surrounding. So whenever you do any study on anything, that is your system, and rest of the part is surrounding. And we may say that universe is a combination of system and surrounding. So when you combine both, you get the universe. This is very easy to understand. Now we have types of system. System is of different types. Basically, it is of three types. Okay. So we have three types. First is open system. First type is open system, right? When a system is known to be an open in the sense it can exchange both matter and heat or energy, we may say. So when a system is of the type that it is exchanging both matter and heat with the surrounding, it is your open system. Like a river. See, a river water is there. River water, what happens to it? It evaporates and goes into the air. So your river is the system and your water is evaporating and going into the surrounding. So river is exchanging matter with the surrounding, whereas it is also exchanging heat with the surrounding. Okay, हीट इज ऑल्सो बीइंग एक्सचेंज. तो कभी कभी आपको लगता है कि रिवर का पानी गर्म हो गया, कभी लगेगा ठंडा हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन्स. सो इट इज ओपन सिस्टम. Okay, so another example, if a glass filled with water is kept in a room or on a table, so that is also open system because on the top it is open, from the top it is open, so evaporation से इसके particles air में जाएंगे, right? It is again open. And human being, not to forget, human beings, they are also open system because we are exchanging matter, we are also exchanging heat with the surrounding, so we are also open systems. All right, taking up next, another type of system is closed system. So closed system is closed in a sense that it cannot exchange matter with the surrounding. So closed system cannot exchange matter, can't exchange matter, but can exchange heat. Cannot exchange matter beta, matter नहीं exchange कर सकता, but heat can flow, heat can exchange, can be exchanged. Okay, for example, you are taking a beaker filled with water and it is closed from the top, so beaker of water is there. Okay, now there is surrounding also, so surrounding के साथ heat exchange करेगा. Okay, beaker, because the walls are conducting
तो ये जो वॉल्स है वीकर की, दे आर मेड अप ऑफ एनी मटेरियल लाइक स्टेनलेस स्टील का हो सकता है या किसी और एल्यूमिनियम का हो सकता है। सो ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, ठीक है। सो इफ वॉल्स आर कंडक्टिंग, आपकी हीट अंदर से बाहर भी जाएगी, बाहर से अंदर भी आएगी, डिपेंडिंग कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है। एंड यू नो क्यू फ्लोज फ्रॉम, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और hot I mean from high temperature to low temperature, ठीक है। from hot body to cold body. Body doesn't mean human body. Body means the component. It may be surrounding, it may be your system. And the last type is isolated system. Okay, the name is itself isolated, that means it is completely isolated. So suppose we are taking a vessel that is insulated, a proper insulation is there, insulated material is used. So we know that insulated material is of the type that it cannot exchange Q, and it is even closed. So Q भी exchange नहीं होगा और matter भी यहाँ पे exchange नहीं हो सकता. It is fully isolated. Okay, a gas may be there, a liquid may be there, or anything may be inside. So isolated system cannot exchange either heat or matter with the surrounding. So these were the three types which I have just explained. Moving further, here two more important terms are there: state function and path function. So in thermodynamics, we often say this property is state function. This is not a state function or a path function. What are these? So let us discuss state function and path function. So बेटा लोग, जो state function होता है, state function वो property है whose change does not depend upon the path, does not depend upon the path. तो जो प्रॉपर्टीज पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, पाथ मीन्स हाउ दे आर चेंज्ड, हाउ द चेंज हैज बीन ब्रॉट. फॉर एग्जांपल योर बॉडी टेम्परेचर, so suppose a property like temperature, so we can say temperature is a state function. Okay, and we also know in this chapter this enthalpy, your internal energy, IE, or internal energy, your entropy, all these properties are there in this chapter. They all are स्टेट फंक्शंस, इवन गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, स्टेट फंक्शन. अब स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दे इफ वी आर स्टडिंग एनी सिस्टम, अगर हम कोई यहाँ पे वेसल में सपोज वी हैव टेकन एनी गैस वी हैव टेकन, ओके, तो जब हमने गैस ली है, गैस मस्ट बी हैविंग सम एंट्रोपी. अच्छा, हम टेम्परेचर की बात करते हैं, सिंस आपने दूसरी प्रॉपर्टीज अभी तो नहीं पढ़ी हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आपको सिर्फ टेम्परेचर का पता है, ठीक है. सपोज इट इज अ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इन द बिगिनिंग, एंड आफ्टर सम टाइम हमने देखा इस जो वेसल में गैस है, इसका टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर पे आ गया है 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ 40 डिग्री सेल्सियस, सो वी रिक्वायर चेंज इन टेम्परेचर. तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे, वी टॉक अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, एंड चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डेल्टा, एंड along with this we put T, बिकॉज टेम्परेचर के लिए T साइन विल बी यूज्ड. now डेल्टा T के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, एंड माई फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एंड माई इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, एंड आई कैलकुलेट द वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस का जो है चेंज हुआ है, and that change may be negative or that change may be positive. But for calculating the change in temperature, I have used only the final and the initial values. Those properties which are calculated in this manner, they are known as state functions. Okay, and likewise enthalpy के लिए we will be calculating change in enthalpy, internal energy के लिए change in internal energy. So बेटा मैं आपको बता दूं, enthalpy change is denoted by delta H, internal energy delta U or delta E, entropy is delta S, and Gibbs free energy is delta G. एंड टेम्परेचर के लिए ऑफकोर्स डेल्टा टी रखेंगे, अनलेस एंड अनटिल कांस्टेंट टेम्परेचर वहां पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है. And the other properties which are not state function, those are called path function, and path function stands for a property that takes into account the total path followed. I mean how the change has been brought. So it has different value for final and initial depending upon the path. And in this under this path function, we have only two properties, that is heat and work. Heat and work are considered as path function because they, for calculating them we don't calculate change in heat. Okay, we don't calculate change in work like this. So in thermodynamics we always look at how the heat
has been increased or decreased of the system, or whether the work is done by the system or on the system. So work दो तरह का होता है. I'll explain further. आगे मैं बताऊंगी आपको कि वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम क्या होता है. ठीक है. तो पाथ फंक्शन में वी हैव ओनली टू प्रॉपर्टीज, हीट एंड वर्क. नेक्स्ट इज योर important in this chapter is first law of thermodynamics. तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जल्दी जल्दी से कर लेते हैं और फिर हमें आगे भी नेक्स्ट टॉपिक्स भी देखने हैं. ठीक है. We have very important first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics just equivalent to law of conservation of mass and energy. It is just equivalent to law of conservation of mass. It says that heat जो है, एनर्जी जो है, that transforms, एनर्जी ट्रांसफॉर्म तो करती है वन फॉर्म टू अनदर ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन the total energy but the total energy of the system or universe, but the total energy of the universe remains constant. यही था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इसने भी यही बात बोली है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती है बट टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट होती है. सपोज दिस इज ए यूनिवर्स और यहाँ पे कोई एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी चलेगी मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी चलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलेगी वाइब्रेशनल एनर्जी में. दिस वे एनर्जी कीप्स ऑन मूविंग हियर एंड देयर एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड into another form. but the total energy जो है हमारे यूनिवर्स की, जो टोटल एनर्जी है वो स्पेस से बाहर नहीं गई है, वो हमारे जो है यूनिवर्स से बाहर नहीं कभी भी जाती है. एनर्जी यूनिवर्स की कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है. ओके, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट इज डेल्टा U is equal to Q plus W. Now with the help of first law of thermodynamics, delta U comes equal to Q plus W. And I have just told you what is delta U. This is change in internal energy. And in change in internal energy किसी सिस्टम की निकालनी है आपको, तो आपको हीट और वर्क का एडिशन करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा. ठीक है. और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है. इंटरनल एनर्जी, अब कोई भी सिस्टम है, सपोज हमारे पास गैस है, वी हैव टेकन अ गैस, हमने 10 लीटर गैस ले ली. दिस इज माई सिस्टम. अब इस गैस के अंदर टोटल जो है मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होगी, दैट इज माय इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी considers the sum of potential energy and kinetic energy. Okay, and then kinetic energy, you know, the energy of motion. Now since the particles are in motion, अब एक एटम जब मोशन में होगा, आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में होते हैं, राइट. इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, प्रोटॉन्स की भी अपनी एनर्जी होगी, न्यूट्रॉन्स की भी अपनी एनर्जी होगी, सब पार्टिकल्स की अपनी अपनी एनर्जी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो मेजर एनर्जीज हैं, जिसमें फर्दर वी हैव स्मॉलर एनर्जीज. इन सब एनर्जीज का जब हम सम करते हैं, ओवरऑल टोटल एनर्जी सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिस्टम, दैट इज माय इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी में सारी तरह की एनर्जीज आ जाती हैं किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम के अंदर. ठीक है. and it is a state function, that means we calculate change in internal energy of any system, and change is calculated always final minus initial. Okay, final minus initial. Final internal energy minus initial internal energy gives us the value of change in internal energy. all right, अब आगे देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है. इस चैप्टर में इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे न्यूमेरिकल्स. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं. अब आपको मैंने रिलेशनशिप बता दिया थर्मोडायनेमिक्स में, जो आपने याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए. पहला रिलेशन है ये. ओके, नाउ हियर टू थिंग्स आर देयर. अब जो Q है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है. अब ये पॉजिटिव कब होगा Q? व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जब कोई सिस्टम एब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, देन यू टेक Q एज पॉजिटिव. और अगर कोई सिस्टम हीट लूज करेगा, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तब Q को आपने नेगेटिव रखना है. ठीक है. सिमिलरली वर्क जो है दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव. एंड व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, it is only when work is done on the system. It is when work is done on the system. Okay,
जब सिस्टम पे काम करेंगे हम। देन एंड ऑन द अदर हैंड नेगेटिव कब होगा? इट इज व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, जब कोई सिस्टम काम करेगा उसका वर्क जो होगा वो नेगेटिव में हम रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव a numerical, a system is there, a system मैं शॉर्ट में लिखूंगी, system absorbs 40 joule energy and does 20 joule work। ये आपको बोल रहा है वो, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा यू, वो बोल रहा है कैलकुलेट करो डेल्टा यू को। अब हम देखेंगे ये बोल क्या रहा है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। एब्जॉर्ब, सो दिस विल बी पॉजिटिव प्लस क्यू। एंड डज वर्क मीन्स उसने काम किया बाय द सिस्टम, एंड बाय द सिस्टम होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो अगेन क्यू प्लस डब्ल्यू लिखिए, क्यू को पॉजिटिव रखिए 40 जूल और 20 जूल। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, माइनस 20 करेंगे, सो योर आंसर विल बी 20 जूल्स। ओके, पॉजिटिव में आया आपका डेल्टा यू, तो डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब होता है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सो दिस गिव्स अस द कंक्लूजन दैट देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपका नेगेटिव साइन आएगा दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी कम हो गई है, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज। दिस इज द थिंग। उसके बाद मूविंग नेक्स्ट विल बी आर enthalpy। Okay, I'll quickly tell you what is enthalpy. Enthalpy is nothing but the heat change when system undergoes any change। जब कोई सिस्टम में कोई चेंज आती है तो ऑब्वियसली उसकी हीट में भी चेंज आएगी, ठीक है। कोई भी सिस्टम आपने लिया, आपने कोई हॉट कप ऑफ टी इज देयर, आपने कोई हॉट कप ऑफ टी ही रखा है, इट इज हॉट, ठीक है, इट इज हॉट। तो आप धीरे धीरे देखेंगे वो ठंडा हो जाएगा। तो अब इसकी जो हीट है वो चेंज हुई है, इसकी जो हीट है पहले से कम हो जाएगी और मे बी इंक्रीज ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो कितनी इसकी हीट चेंज हुई व्हेन इट डज व्हेन एनी चेंज इज देयर। सो हीट चेंज कभी भी कोई सिस्टम में होती है उसको हम इंथैल्पी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इंथैल्पी इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एच, एंड अगेन इट इज अ स्टेट फंक्शन, एंड इफ इट इज अ स्टेट फंक्शन सो वी कैलकुलेट ऑलवेज द डेल्टा एच फॉर इट, ठीक है। डेल्टा एच निकालेंगे, चेंज इन इंथैल्पी निकालेंगे। सपोज हमने कोई रिएक्शन की, वी हैव कन्वर्टेड ए इनटू बी, and in that process heat change will occur। So whenever a reaction occurs, it may be exothermic or it may be endothermic। So exothermic means heat is released। अब heat release हुई है, अगर heat release हुई है तो आपका जो डेल्टा एच का साइन होगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब के लिए आप डेल्टा एच को क्या रखते हो? पॉजिटिव। डेल्टा एच मीन चेंज आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब ये कैसे आएगा? देखो, ए से बी गया, हम कह रहे हैं हीट रिलीज हुई, तो ए की अगर हीट थी 100, बी की हीट है 50, तो जो रेस्ट 50 थी वो कहाँ गई? इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल गई ना, बाहर निकल गई हीट। तो अब मुझे बताओ कि जो टोटल जो एनर्जी है वो ए की हाई है कि बी की हाई है? ए की हाई है ना, क्योंकि उसकी जो हीट है वो 100 है। मोर हीट मीन्स मोर एनर्जी, एंड बी मीन्स लेस हीट लेस एनर्जी। तो व्हेन यू कैलकुलेट डेल्टा एच निकालेंगे, इंथैल्पी ऑफ बी और एनर्जी, enthalpy is nothing but another form of energy only, enthalpy of B minus enthalpy of A, enthalpy of A, okay, then 50 minus 100 will be your minus 50, the value is negative। So that is why we were saying कि when heat is released it is given negative sign, because हमारा delta H negative आ जाता है ना, B products जो है उनकी heat कम हो जाती है than your reactants, and vice versa is for एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक में आपका ए जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा टू फॉर्म बी। अब बी की एनर्जी ज्यादा हो गई ना, क्योंकि ए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्यू चला गया और बी में वो कन्वर्ट हो गए, तो बी की टोटल एनर्जी ज्यादा आएगी। इस बार बी 100 आ जाएगा और ए की एनर्जी जो थी वो 50 थी, है ना। तो क्यू जो है एक्स्ट्रा 50 उसने एब्जॉर्ब किया, तो देन डेल्टा एच विल बी 100 माइनस 50, इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच का साइन यू शुड रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट बच्चा लोग हम करेंगे एंट्रोपी की बात जल्दी से, ठीक है। मैं फटाफट आपको एंट्रोपी बता देती हूँ क्या होता है। एंट्रोपी इज नथिंग, एंट्रोपी में हम क्या करते हैं, सिस्टम की रैंडमनेस देखते हैं। हाउ
मच द मॉलिक्यूल्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड। मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस कितनी ज्यादा है, ठीक है। और आपको पता है गैसेस जो होती हैं दे हैव मैक्सिमम रैंडमनेस, क्योंकि पार्टिकल्स दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो गैसेस की एंट्रोपी इज द हाईएस्ट, फॉलोड बाय लिक्विड, एंड लीस्ट इज फॉर सॉलिड्स, ठीक है। अब एंट्रोपी अगेन स्टेट फंक्शन भी है, और स्टेट फंक्शन है तो वी कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल माय ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बी, तो मैं निकालूंगी एंट्रोपी ऑफ बी माइनस एंट्रोपी ऑफ ए, एंट्रोपी ऑफ बी माइनस एंट्रोपी ऑफ ए, इस तरह से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई वाटर इन सॉलिड फॉर्म इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर इन लिक्विड फॉर्म, सपोज मेल्टिंग हुई है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। नाउ इन मेल्टिंग ऑफ ice we see S is transforming into liquid, so I can say that my change in entropy is, you know, entropy of B is randomness, तो liquid की randomness is more minus less क्या आएगा? आपका आंसर पॉजिटिव, so delta S is positive in that case if your entropy is getting increased on going from reactants to products, okay। so आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी कब बढ़ेगी, जब आपकी स्टेट जो है वो चेंज होगी। और हम देख सकते हैं एंट्रोपी को इस तरह से भी, सपोज आपको स्टेट्स आर नॉट मेंशन्ड, आपको पेपर में कुछ आ गया उसमें स्टेट मेंशन नहीं है, तब आप क्या करोगे? आप रिएक्शन को देखिए, सपोज अ रिएक्शन इज ऑफ द टाइप 2A प्लस 3B फॉर्मिंग C प्लस D। अब आपको स्टेट तो पता नहीं है ABCD की क्या है, तो अब आप एंट्रोपी कैसे निकालोगे? एंट्रोपी के लिए यू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। So on left hand side, total number of moles are 5, that is 2 plus 3, and on product it is 1 plus 1 2. So more the number of particles, more will be the randomness. इसका मतलब है reactants की randomness ज्यादा है products से, then delta जब आप निकालोगे that will be 2 minus 5, that is your answer will be negative। इसका मतलब है entropy decrease हुई है इस system की। ऑल राइट, सो एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी, एंट्रोपी डिक्रीज कब होगी, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ऑल राइट, इसके बाद हम मैक्सिमम अपना पार्ट कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। लेट अस टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस क्विकली। सो स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज विच आर पॉसिबल टू हैपन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा वो होते हैं जो हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं जो नहीं होते, जो पॉसिबल नहीं होते, और उनको पॉसिबल बनाने के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी हैज टू बी गिवन। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऑल नेचुरल प्रोसेस आ जाते हैं बेटा, जितने भी ऑल नेचुरल प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, ऑल आर स्पॉन्टेनियस क्योंकि वो हो रहे हैं। बिसाइड्स दैट यू आर बर्निंग समथिंग, बर्निंग ऑफ कार्बन, वुड, पेपर, दैट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। आप थोड़ा सा जलाते हो उसको, देन इट कीप्स ऑन बर्निंग। तो स्पॉन्टेनियस इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एक तो वो जो अपने आप होते हैं, और एक वो होते हैं जो इनिशिएशन से होते हैं, जस्ट वी इग्नाइट देम, ओके, थोड़ा सा जला के, थोड़ा सा स्टार्ट करके हम छोड़ देते हैं, रिएक्शन होती रहती है टिल कंप्लीशन। whereas नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज विच कैन नॉट हैपन ऑन देयर ओन, और ना ही इनिशिएशन से। सपोज पहाड़ों पे आप जाते हो, आप हमेशा वाटरफॉल देखते हो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, सो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अप टू डाउन, ओके। तो डाउन टू अप पानी अपने आप कभी नहीं जाएगा, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो गोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन टू अप, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। अब आपको डाउन से अप ले जाने के लिए कंटिन्यूअस जो है वो सप्लाई ऑफ मोटर देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और तब जाके आपका नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस को आप जब कंटिन्यूअस एनर्जी दोगे तभी करवा पाओगे, अगर बीच में आप स्टॉप कर देते हो देन इट इज अगेन, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल और नॉर्मल पोजिशन अगेन, okay। We have spontaneous and non-spontaneous process, and the last topic of this chapter is Gibbs free energy। गिब्स फ्री एनर्जी, अब ये एनर्जी कौन सी है किसी सिस्टम की, ये कहाँ से आ गई? अब देखो पूरा सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसको हमने बोला था इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोला था, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी है, अब इंटरनल एनर्जी का वो छोटा सा पार्ट, इंटरनल एनर्जी का वो स्मॉल पार्ट, छोटा पार्ट जो वो यूज करता है टू डू सम यूजफुल वर्क, ओके। फ्री एनर्जी इज ऑलवेज यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क, कोई काम किया, और इम्पोर्टेंट काम जब कोई करेगा, यूजफुल वर्क कोई सिस्टम करेगा,
ऑलराइट, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट है गिव्स फ्री एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, alright, and it is denoted by the letter G, and it is again a state function, therefore we calculate always delta G, and delta G will be calculated in the same manner. For the conversion of A to B, delta G will be calculated as free energy of B minus free energy of A, ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ बी माइनस फ्री एनर्जी ऑफ ए। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, अगर फ्री एनर्जी मेरे रिएक्टेंट्स की ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम है, तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? डेल्टा जी विल बी, अगर मैं ए से बी बना रही हूँ और मैं बी की फ्री एनर्जी जो है जी जो है वो लेस है, ए की जो जी है वो मोर है, सो आंसर विल बी माई नेगेटिव। तो लेस माइनस मोर क्या होता है? वैल्यू जो भी आएगी, हमने साइन देखना है, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर मेरा प्रोडक्ट का गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा हुआ और रिएक्टेंट्स का कम हुआ, तब मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर दोनों साइड मेरी गिब्स फ्री एनर्जी सेम हुई, देन मेरा डेल्टा जी क्या आएगा? जीरो भी आएगा। ओके, सो आज मैंने ये थोड़ा सा आपके साथ जितना भी डिस्कस किया है, दैट इज मोर देन एनफ टू डेवलप एटलीस्ट some confidence in this chapter. So you need to side by side go through NCERT, and you revise the things again for better learning. Thank you for joining my class. Have a nice day.